الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں، خیر میں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ آنے سے پہلے آپ ساری بہنوں نے اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ الحمدللہ آج جو ہم دو آیات کریں گے اس میں سے پہلی جو آیت ہوگی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے۔ کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کیا کرتا ہو، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے حوالے سے قرآن مجید کی بہت ہی معروف آیت ہے، اور اس آیت کے اندر جو اہم چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ زندگی کس کے لیے بہترین نمونہ ہوگی؟ ویسے تو ہم سب کے لیے، لیکن خاص وہ کنڈیشن مینشن کر دی کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ اللہ سے ملاقات کا معاملہ، آخرت کے دن کی پیشی کے معاملے کا اسے یقین ہو، تو وہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور کون؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آخری رسول کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کی زندگی کو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، اور یہ نمونہ تمام امور کے اعتبار سے ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی یعنی بعض چیزوں میں تو آپ اللہ کے نبی کی بات کو لیں اور بعض چیزوں میں آپ اپنے نفس کی اتباع کریں۔ اسی لیے عبادت کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، زندگی کے انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایکشن ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ये रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, जो मामूलात थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब ज़िंदगी थे, चाहे आपके उठने-बैठना हो, आपके सोने-जागने के आदाब हो, आपके पानी पीने या पिलाने के आदाब हो, खाने-पीने के आदाब हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब हो, उसके मामलात हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी किस तरह मनाई, आपने गम के मौके पर अपनी उम्मत को क्या गाइडलाइन दी। हर एक्शन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत कीमती है हम सब के लिए। और अगर आप इन आयात को देखें, थोड़ा-सा अगर आप टेक्स्ट को देखें इस आयत के और उससे पहले की आयत को देखें और उसके बाद की आयत को देखें, यानी इस 21 से पहले और बाद की आयत को देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये आयत ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक के तज़किरे में आ रही है कि जिस मौके पर सारे अरब से एक बहुत बड़ा लश्कर यकजा होकर आया और मुसलमानों का मदीना में मुहासरा हो गया। उस दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाने के बाद ये तय फरमाया कि खंदकें खोद कर मदीने का दिफा किया जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाने के बाद सिर्फ हुक्म नहीं दिया, बस आप हुक्म देख के बैठ गए, बल्कि खुद खंदक खोलने के अमल में शामिल रहे, खुद आप मसरूफ रहे और अपने सहाबे रदी अल्लाह अन्हुम की तरह खुद भी मुशक्कतों को झेला। अल्लाहु अकबर! आपने भी अपने पेट पर पत्थर बाँधे और ये सारी मुशक्कतें खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई। इसीलिए अल्लाह ताला ने उस ग़ज़वा के सिनेरियो में अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो मुशक्कतें तुम उठा रहे हो, जो तुम खंदक खोल कर जो तुमने पेटों पर पत्थर बाँधे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुमको अमली नमूना बन के दिखा रहे हैं। तो क्या बात पता चली कि आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। अहम जो पॉइंट है समझने का कि आप देखिए कि अल्लाह के पैगंबर ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, खंदक के मौके पर भी खड़े हैं। सारी मशक्क़तें भी आपने झेली, आपने कुदाल भी उठाई, आपने जिसे कहा था खंदकें भी खोदी, आप दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हुए, यानी आप पीछे नहीं हटे। ये नहीं कि सहाबा को फ्रंट कर दिया और आप पीछे, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो चेहरा भी ज़ख्मी हुआ था 5 जंगों में, ठीक है ना? और आपके दाँत मुबारक भी टूटे। आपने अपने हाथों से खंदक खोदी, तो आपने ये सारी मुशक्कतें झेली और आपको याद है एक सहाबी वो आए आपके पास और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पीठ पर पत्थर बाँधा हुआ है ताकि मैं भूख को दबा सकूँ और बर्दाश्त कर सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया और वहाँ पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये है अल्लाहू अकबर एक लीडर की क्वालिटी। एक लीडर की खूबी कि जहाँ वो अपने सहाबा को हुक्म दे रहे हैं कंधा खोदने का और भूख के मारे पेटों पर पत्थर बंधे हैं। आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हैं। आपकी मुशक्कत को देखिए। आपने कितनी मुशक्कत उठाई, तो इस वाक़े को बयान करने से मुराद क्या है कि अल्लाह के नबी किसी से पीछे नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे बढ़कर हैं। आप देखिए 23 साल की जो एक स्ट्रगल है जद्दोजहद के दौरान ये ग़ज़वा अहज़ाब का मौका आया और इसी मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तबसरा है और इसी तबसरे के दौरान ये आयत नाज़िल की कि जहाँ तुम मशक्क़त उठा रहे हो तो तुम देखो तुम्हारे रसूल कितनी मशक्क़त उठा रहे हैं। तो इनकी तो सुन्नत है, इस पर तुम इत्तिबा करोगे तो कामयाब होगे। ये बहुत कीमती है। आपका हर एक्शन, हर अमल हमारे लिए लाए अमल है, चाहे मिसवाक करना हो, चाहे खुशबू लगाना हो, कि ये वो सुन्नतें हैं जिनको इंसान अपना कर अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। आज ये तसव्वुर उम्मत के ज़हनों से महव हो गया है, महव हो गया है। यहाँ फरमाया जा रहा है कि सारे सियाक़-ओ-सबाक़ में सारी जद्दोजहद को सामने रखो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये आयत जंग अहज़ाब के ज़मन में नाज़िल हुई, जिसमें जंग के मौके पर बतौर ख़ास अल्लाह के नबी के उसवा हसना को सामने रखने और उनकी इक़्तिदा करने का हुक्म दिया गया। लेकिन याद रखिए ये हुक्म आम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अक़वाल, तमाम अफ़आल, तमाम अहवाल में मुसलमानों के लिए आपकी इक़्तिदा ज़रूरी है। चाहे उनका ताल्लुक इबादत से हो या माशरे से, मईशत से या सियासत से। ज़िंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत वाजिबुल इत्तिबा है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सूरह अल हश्र की आयत नंबर 8।
अब देखिएगा कि इसमें क्या फरमाया जा रहा है कि जो तुमको रसूल दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए लोगों, इन कुंतुम, अगर तुम दावा करते हो ना तुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो क्या करो, अपने दावे को सच्चा दिखाने के लिए फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, उनके फुटस्टेप पर चलो। तो इसका क्या होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, फिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो इससे ये वाज़ेह हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को वही अपनाएगा जो आखिरत में अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखता हो और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता हो। आप देखिए, आज अल्लाह के नबी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अब अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन की दावत और उसके दीन की सरबुलंदी की जद्दोजहद हम सब मुसलमानों के ज़िम्मे है। ये है जो इस आयत करीमा में फरमाया जा रहा है कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आज अल्लाह के नबी नहीं है, तो क्या मिशन रुक जाएगा? उलमा तो अल्लाह के नबी के जो वरसा है, उसके वारिस हैं। ये काम तो उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये वही करेगा जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है कि उसे एक दिन अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है और फिर वो साथ में कसरत से अल्लाह का ज़िक्र भी करने वाला हो। मुराद है कि महज़ दावा काफ़ी नहीं है ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या सिर्फ़ ये कहना काफ़ी नहीं है कि हम तो अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप देखिए कि जैसे कल का यकीन होगा ना, कल की पेशी का यकीन होगा, कल की हाज़िरी का यकीन होगा, अल्लाह के सामने वो अल्लाह का ज़िक्र भी कसरत से करेगा। सिर्फ़ वही उसवा हसना से फ़ायदा उठा सकेगा। अब देखिए मिसाल देती हूँ, जब बारिश बरसती है ना, तो जो चाहे उस बारिश से फ़ायदा ले सकता है, लेकिन जो अपने बर्तन को उल्टा करके रख दे, तो क्या वो पानी को समेट सकेगा बारिश के? नहीं समेट सकता। तो बारिश कहने का मकसद है अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ख़ज़ाने, आपका विरसा, आपकी एक-एक अदा, आपका एक-एक एक्शन हमारे पास जिसे कहते हैं प्रिज़र्व है, कीमती है, बहुत हमारे लिए प्रेशियस है। लेकिन हम में से कौन इस कीमती मता से फ़ायदा हासिल करेगा? जो अपना दिल को खोलेगा, जो अपने बर्तन को सीधा रखेगा, ताकि ये सारा ख़ज़ाना अपनी ज़िंदगी में लेकर अल्लाह के नबी की इत्तिबा करके वाक़ई अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको वाक़ई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से भरपूर इस्तिफ़ादा का मौका दे दे। अल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम उमूर में, चाहे वो इनफ़िरादी हो, इज्तिमाई मामलात में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी की हम सबको तौफ़ीक अता कर दे। और ये उसी वक़्त होगा जब आखिरत के दिन जवाबदेही का एहसास होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन के एहसास को सामने रखते हुए हम दुनिया में अल्लाह के नबी की खूब इत्तिबा करें और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अगली आयत को देखते हैं जो कि सूरह अल हुजरात की है, आयत नंबर 11। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए अहले ईमान, तुम में से कोई गुरु दूसरे गुरु का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। इसी तरह औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। और अपने आप को ऐब मत लगाओ, और ना आपस में एक दूसरे के चिढ़ाने वाले नाम रखा करो। ईमान के बाद तो बुराई का नाम भी बुरा है। ईमान के बाद तो बुराई का नाम भी बुरा है, और जो बाज नहीं आएंगे तो वही क्या है, जालिम है। आप यहाँ देखें इस आयत के अंदर माशरती हवाले से हम सबको रहनुमाई अता की गई है, और कुछ मजलिसी बुराइयां जो दूसरों की मौजूदगी में की जाती है ना, इनमें से तीन का जिक्र किया गया है।
ये वो बुराइयाँ जो दिलों को फाड़ देती हैं, याद रखिए। ये वो बुराइयाँ हैं जो मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा-पारा कर देती हैं। इसीलिए इससे बचने का हुक्म दिया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ईमान की पुकार से हम सबको पुकारे, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, क्या करो? ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। कहा जा रहा है जो मर्द मर्दों का मज़ाक ना उड़ाए। ऐन मुमकिन है कि जिनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है वो मज़ाक उड़ाने वालों से बेहतर हों। और इसी तरह वला निस्साउम मिन निस्साइन, और ना औरतें औरतों का मज़ाक उड़ाएँ। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, ऐन मुमकिन है कि जिनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है वो मज़ाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हो। पहली हिदायत जो मुझे और आपको दी जा रही है कि मज़ाक ना उड़ाया जाए। देखिए, एक है मज़ाक करना जिसमें झूठ ना हो, किसी की तहक़ीर ना हो, लाइट मूड में कोई गुफ्तगू हो जाए, जो मुख़ातिब को बुरी भी महसूस ना हो, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ होता है, इसमें झूठ से सिलसिला शुरू होता है और तज़लील यानी ज़िल्लत पर बात ख़त्म होती है, हक़ारत से देखने पर बात ख़त्म होती है। किसी मुसलमान की तज़लील करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। जानो माल और इज़्ज़त और आबरू से खेलना हराम है। तो देखिए, मर्दों का ज़िक्र अलहदा किया और औरतों का ज़िक्र अलहदा किया। अब देखिए, इस्तेज़ा, मज़ाक उड़ाना, ठट्टे करना, हँसी उड़ाना, जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, दूसरे को लेट डाउन करना हो। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, क्योंकि ये बहुत कॉमन जिसे कहा जाए नज़र आता है। और आप देखिए कि जब आप मज़ाक उड़ाएँगे तो क्या होगा? दिलों में शदीद बुग़्ज़ और नफ़रत पैदा होगी। और जिसका मज़ाक उड़ाया जाए वो उसे अपनी तज़लील समझकर हर वक़्त इंतकाम के मौके की तलाश में रहेगा। और ज़ाहिर है, इंतकाम में बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। तो कोई शख्स किसी का ठट्टा उसी वक़्त उड़ाता है जब वो अपने आप को उससे बेहतर और उसको अपने आप से हक़ीर और कमतर समझता है। और याद रखिए, ऐसा समझना तकब्बुर की अलामत है, जिस पर शहीद शदीद क़स्म की वईद आई है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़रा बराबर तकब्बुर होगा। एक आदमी ने कहा, आदमी पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर तो हक की इनकार और लोगों को हकीर जानने का नाम है। बतरुल हक व गमतुन नास, हक का इनकार करे और लोगों को हकीर जाने, तो मना किया जा रहा है। और आप खास कर देखिए कि दोनों को अलग-अलग मना किया जा रहा है। आप ये देखिए कि जब किसी महफ़िल में बैठते हैं तो अक्सर किस चीज़ पे बात होती है? कभी किसी की शक्ल और सूरत पे बात की जा रही होती है, कभी किसी के लिबास का मज़ाक उड़ाया जा रहा है, कभी किसी के चलने का मज़ाक उड़ाया जाता है, कभी किसी के एक्शन का मज़ाक उड़ाया जा रहा होता है। इन तमाम मामलात के हवाले से मुझे और आपको याद दहानी कराई जा रही है, कि मैं और आप किसी का मज़ाक ना उड़ाएँ, हम किसी का तमस्खुर ना करें। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। ये ऐसी माशरती बुराई है जिससे सिर्फ़ फ़साद जन्म लेता है। अब देखिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि मज़ाक उड़ाने वालों को बता रहे हैं कि तुम जिसको हक़ीर समझकर ज़लील कर रहे हो सकता है कि वो अल्लाह क्या तुमसे बेहतर हो? क्यों? क्योंकि अच्छा या बुरा होने का दारोमदार क्या ज़ाहिरी शक्ल और सूरत पर होता है? नहीं, बल्कि दिल के तक़वे पर है और उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। और ख़ासकर देखिए कि औरतों का अलग से ज़िक्र किया गया। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि औरतों को इस गुनाह से रोकने की ख़ास ज़रूरत है। सवाल ये है कि मर्दों को मर्दों से, औरतों का औरतों के साथ मज़ाक उड़ाने से तो मना किया है, लेकिन क्या मर्द और औरत का आपस में मिक्सिंग ठीक है? आपस में ठट्टे उड़ाना ठीक है? तो जवाब तो यही है कि माशरे में मर्द और औरत की फ्री मिक्सिंग जायज़ ही नहीं है। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जिसमें वो एक-दूसरे के साथ तकल्लुफ़ मज़ाक उड़ाएँ, बेतकल्लुफ़ी के साथ जिसे कहा जाए एक-दूसरे से बात करें। ये तो इस्लाम इसकी गुंजाइश ही नहीं रखता, तो फिर वो एक-दूसरे का मज़ाक कैसे उड़ाएँगे? यहाँ मर्द और औरतों की अलग-अलग मजलिस की बात हो रही है। इसलिए दोनों का अलग से ज़िक्र किया गया। और इस बात को भी ज़हन में रखिएगा कि मज़ाक को ज़बान के साथ उड़ाया जाए, यानी आप अपने मुँह से मज़ाक उड़ाकर किसी की कोई बात करती हैं या किसी के नुक्स की तरफ इशारा करती हैं, इशारों से बात करती हैं, इशारों से जिसे कहा जाए किसी के कमी का इशारा कर रही हैं, या नकल उतार कर, होता है ना स्कूलों में नकल उतारी जाती है टीचर्स की, किसी का कोई ऐब है तो उसकी नकल, तो ये नकल उतार कर हर तरह का मज़ाक उड़ाना हराम है। आपको याद है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, किसके बारे में? सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, कि आपको सफ़िया से यही कुछ काफ़ी है कि वो ऐसे-ऐसे हैं। मुराद क्या थी? उनके ख़त का छोटा होना था।
हमारे हाथ में तो नहीं है, किसी का कद छोटा है, कोई लंबा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के हाथ में है, किसी की नाक ऐसी, किसी की आँखें ऐसी हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह क्या किसी का मतलब कोई इसको चेंज कर सकता है? ये तो सब अल्लाह का इख्तियार है। तो आप तो एक तरह से अल्लाह की तख्लीक पर जिसको हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा उन्होंने, मुराद उनकी ये थी कि उनका कद छोटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज़ हैं, ये इसको गौर से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने यकीनन ऐसी बात की है कि अगर समुंदर के पानी में मिला दी जाए तो सारे पानी को खराब कर दे। इतना बड़ा समंदर है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, और मैंने आपके सामने किसी इंसान की नकल उतारी तो उसका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पसंद नहीं करता कि मैं किसी इंसान की नकल उतारूं, और मुझे ये कुछ मिल जाए। तो हम में से कोई किसी का, जिसे कहा जाए, नकल ना करे, किसी का मजाक ना उड़ाए। और आप देखिए कि इन तमाम कैफ़ियत में, ये जो कैफ़ियत आपके सामने रखी ना, किसी का शक्ल ऐसी, तो किसी का रंग ऐसा, तो किसी का लिबास ऐसा, किसी का माल ऐसा, अल्लाह ताला ने किसी न किसी को तो इन कैफ़ियत में रखा है ना, तो अब मज़ाक उड़ाने में या किसी को हक़ीर साबित करने में, गोया बंदा अल्लाह के फ़ैसलों पर एतराज़ कर रहा है। ये तो जुर्म से भी बढ़कर मज़ीद बड़ा जुर्म करने वाली बात है, इससे दिल फट जाते हैं, बरसों के रिश्ते ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। इसका हल वही है जो इंग्लिश की एक कहावत है ना, इंग्लिश में कहा जाता है, निप द एवर इन द बड। बुराई को पनपने से पहले जड़ से उखाड़ दिया जाए। लिहाजा एक दूसरे से मतलब मजाक ना उड़ाओ, ऐसा मजाक जिसमें तहकीर का पहलू हो, जिसमें दूसरे को जलील करना हो, इससे मना किया जा रहा है। और दूसरी माशरती बुराई क्या है? वला तलमीजू अनफुसकम, और अपने आप को ऐब ना लगाओ। ये तो बहुत अजीब सा जैसे कहा जाए ट्रांसलेशन है। असल में तो बंदा दूसरों पे ऐब लगाता है, दूसरों पर लान तान करता है, लेकिन अपने मुसलमान भाई में ऐब निकालना, अपने मुसलमान भाई पर लान-तान करना दरअसल अपने आप ही को ऐब लगाने के मुतरादिफ है। क्यों? क्योंकि हदीस मुबारका के मुताबिक ये उम्मत एक जसद यानी वाहिद की मानंद है। ये उम्मत एक इमारत की मानंद है। आज अगर मैं अपने मुसलमान भाई पर ऐब लगाती हूँ या लान-तान करती हूँ, नुक्ताचीनी करती हूँ, गोया इन सब बातों के नतीजे में मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ। तो फरमाया, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और अपने आप को ऐब ना लगाओ। इसमें ऐब लगाना, नुक्ताचीनी करना, लान-तान करना, दूसरे को तैश में लाने की कोशिश करना, ये सब घटिया हरकतें इसमें शामिल हैं। ये भी मुसलमान भाई की इज़्ज़त से खेलने के मुतरादिफ है, जो कि कतई जायज़ नहीं है। और इसी तरह की बातें करने के नतीजे में दिल फटते हैं और मुसलमानों का इत्तेहाद पारा-पारा होता है। ये दूसरी बुराई है जिससे हमें रोका गया है। और अगर आप लमज़ा यलमिज़ू लमज़न के वर्ड को देखेंगे तो किसी पर ऐब लगाना, ख़फ़ी कलाम के साथ आँख का इशारा करना, कि आँखों-आँखों से इशारा भी कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला, या धक्का देना, मारना। आपको याद है सूरतुल हुमज़ा पढ़ते हैं ना, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा। तो अल्लाह ताला ने ये कहने के बजाय किसी पर ऐब ना लगाओ, ये फरमाया कि अपने आप पर ऐब ना लगाओ। तो इसकी एक वजह तो बता दी कि मुसलमान क्या है, एक जिस्म की मानंद है। ऐब लगाने वाले को बात याद रखनी चाहिए कि जब वो किसी मुसलमान भाई पर ऐब लगा रहा है तो दर हकीकत वो अपने आप ही पर ऐब लगा रहा है, सो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी वजह ये कि जब ये दूसरों पर ऐब लगाएगा तो ऐब से खाली तो ये भी नहीं, और दूसरों की आंखें भी हैं और जबान भी है, फिर उसके उयूब भी जाहिर किए जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने आप पर ऐब मत लगाओ। इस आयत में लोगों के सामने किसी के ऐब जाहिर करने और उनको ताना देने से मना फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। और जो शख्स अपने भाई के काम में हो, अल्लाह उसके काम में होता है। और जो किसी मुस्लिम से कोई तकलीफ दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत की तकलीफों में से कोई तकलीफ उससे दूर फरमाएगा। और जो किसी मुस्लिम पर पर्दा डाले, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डालेगा। तो मैं और आप क्या करें? ऐबों को उछालें। जब आप किसी के ऐब उछालते हैं तो अपने ऐब उछालते हैं। तो मैं और आप लोगों के जो ऐब है उस पर पर्दा डालें। और आगे तीसरी बुराई का ज़िक्र कर दिया, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और बाहम एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से ना पुकारो, यानी किसी का नाम बिगाड़ देना या किसी को चिढ़ाने वाला नाम रखने की कोशिश करना, किसी को माज़ूरी का मामला हो या किसी का कोई ख़ास प्रोफ़ेशन हो या ऐसा कारोबार या ऐसी माशी एक्टिविटी कर रहा हो जो कम आमदनी वाला प्रोफ़ेशन हो। मसलन
कहा जाए कि ये तो झाड़ू लगाने वाला, ये तो ज़िम्मेदार वाला काम करता है, ये जो अंदाज़ हुआ करता है ना, ये बुरे नाम रख दिए जाते हैं। कभी किसी के माज़ी पर लानतान का मामला किया जाता है। माज़ी के किसी ऐब का ज़िक्र करके उसे तैश दिलाने की कोशिश की जाती है। और कभी कोई कुफ़र पे था, अब वो इस्लाम की तरफ आ गया तो उसके माज़ी के कुफ़र का उसको ताना दिया जाता है। ये भी मुसलमान भाई या बहन की तस्लील है और ये भी उसकी हुर्मत से खेलना है। आप देखिए ना, अक्सर लोग जब दीन पर आते हैं और दीन दीन पर नहीं आने से पहले वो अल्लाह की नाफ़रमानी में बड़े एक्टिव थे। लेकिन जब दीन की तरफ आते हैं और अल्लाह की इज़्न से नेकी के काम करते हैं तो अक्सर लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं कि तुम क्या थे? हाँ? तुम अपने आप को देखो, हमें दीन की तरफ बुला रहे हो, तुम पहले क्या थे? तो इस तरह की तज़लील करना ये मना किया है। इस ये एक तरह से अपनी भाई की हुर्मत से खेलना ये जायज़ नहीं है। आपको याद है हिज्रतुल मता के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस तरह ज़िलहिज्जा का महीना, अरफ़ा का दिन और हुदूद हरम, जिस तरह उसकी हुर्मत पामाल करना तुम पर हराम है, इसी तरह तुम पर एक दूसरे की जान, माल और इज़्ज़त और आबरू से खेलना भी हराम है। और आज देख लीजिए उम्मत मुस्लिमा किस चीज़ के अंदर आ गई है, किस कदर बुरे अलक़ाब से लोगों को पुकारती, किसी को लंगड़ा कहती, किसी को लूला, किसी को अंधा, किसी को काला, किसी को ठिकना, किसी को कुबड़ा, किसी को गधा, किसी को लोमड़ या कोई भी नाम हो, जिससे किसी को तकलीफ होती है। मसलन किसी से कोई गुनाह हुआ, अब तौबा होने के बाद उसको आड़ दिलाना, उसको चोर कहना, तुम तो हो ही चोर, भाई इंसान है, हो गई गलती हो गई, या खुदा ना खास्ता किसी से ज़िना हो गया, अब वो दोबारा अल्लाह की तरफ वापस आ गया है, तो उसको ज़ानी कहना या उसको शराबी कहकर पुकारना। लक़ब ऐसे नाम को कहते हैं, याद रखिए, जिससे किसी खूबी या ख़ामी का इज़हार होता है। वो आदमी ने खुद अपने लिए रख लिया हो या किसी दूसरे ने रख दिया हो। तो यहाँ मना किया जा रहा है कि तुम एक-दूसरे को बुरे अलक़ाब से ना पुकारो, बुरा नाम ना दो, क्योंकि अच्छे अलक़ाब से पुकारना तो काबिल तारीफ़ है। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उमर फ़ारूक थे रज़ियल्लाहु अन्हु, हमज़ा असदुल्लाह थे, इसके अलावा खालिद सैफुल्लाह थे, उबैदुल्लाह अमीनुल अमानत थे और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु साहिब सिर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान थे। तो मोमिन का ये हक है कि उसे उस नाम से पुकारा जाए जो उसे अपने लिए सबसे ज़्यादा पसंद हो। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत पैदा करने और उसे कायम रखने का बाइस है। इसलिए कहा वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, यानी कोई शख्स किसी दूसरे का बुरा नाम ना रखे जिससे वो नाराज़ हो या उसकी तौहीन व तज़लील होती हो। याद रखिए इस हुक्म से वो अलक़ाब मुस्तस्ना हो जाएँगे जो किसी की पहचान ही बन जाए, ना उस नाम वाला उसे बुरा समझता हो और ना उसे उससे मकसूद किसी की तहक़ीर हो, किसी को ज़लील करना हो। जैसे तारुफ़ के लिए हम किसी को नाम रख देते हैं ना, कोई नाम है तो हम कहते हैं ओह! ये जो लंबा है ना, तो इससे इससे मकसद किसी को जैसे कहा जाए तहक़ीर करना नहीं, ज़लील करना नहीं है। इसी तरह अगर कोई जैसे अबू हुरैरा थे ना और ज़ुल यदैन जैसे उनकी कुनियत थी, इसीलिए तो याद रखिए कुछ चीज़ें इस्तिस्ना होती हैं, जैसे किसी का नाम है ना, यानी कुछ अल्काब ऐसे होते हैं जो किसी की पहचान बन जाता है। जैसे कोई लंबा है, अब आपको नाम ही नहीं याद आ रहा, तो उसकी पहचान बन जाती है कि वो बहुत लंबा है। तो अगर आप उसको किसी चीज़ से रिज़ेम्बल करते हैं तो उससे मुराद उसकी तहक़ीर या उसको ज़लील करना नहीं है ना। तो कहने का मकसद है इस तरह के अल्काब जो किसी की पहचान बन जाए, उससे मुराद उसको जिसे कहा जाए ज़लील करना नहीं, तो वो अलग बात है। इसीलिए कहा आगे जो बहुत अहम बात है, बिइसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद बुरे नाम रखना ये फिस्क का मामला है। ईमान के बाद गुनाह ये बुरा नाम है, ये बड़ा फिस्क का मामला है, गुनाह की बात है। ईमान वाला तो दूसरों के लिए अमन का बाइस बनता है, सलामती का बाइस बनता है। तो क्या बात पता चली, इससे मालूम हुआ कि ऊपर जिन चीज़ों से रोका गया वो सब फुसूक है। मकसद ये है कि जो शख्स इन कामों का इर्तिकाब करे वो मोमिन होने के बावजूद फासिक है। और ये बहुत बुरी बात है कि आदमी का नाम फासिक रखा जाए, इसके बाद कि उसका नाम मोमिन है, बादल ईमान, ईमान के बाद। इसलिए फरमाया कि अगर तुम ईमान का शर्फ हासिल ना कर चुके होते तो फासिक या बदमाश कहलाने में आर की कोई ख़ास बात ना होती, आर की कोई ख़ास बात ना थी। लेकिन अब ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद ये नाम तुम पर आना बहुत ही बुरी बात है। तुम्हें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अब तो तुम वो हो जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया था वलकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान। और लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया, और उसने कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दिया। तो तुम्हें हर ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे तुम पर फिस्क का नाम आ जाए।
आगे बता दिया वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो बाज ना आए तो यही वो है जो जालिम है। ये हिदायत, तो ये सारी हिदायत माशरे को दी गई है, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इन हरकतों को नहीं छोड़ता, इन मजलिसी बुराइयों से बाज नहीं आता, यही लोग जालिम है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, बस एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, एक दूसरे की तहकीर ना करें, एक दूसरे के ऐब ना लगाएं, लान तान ना करें, एक दूसरे को बुरे अलकाब या बुरे नाम से ना पुकारें। अल्लाह ताला इन मजलिसी बुराइयों से मुराद एक दूसरे की मौजूदगी में सामने बैठकर जो ये काम किए जाते हैं, इन सब कामों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे दिलों में उल्फत पैदा कर दे, हमारे दिलों को जोड़ दे। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना, अल्लाहुम्मा आमीन। हदीस की तरफ चलते हैं। साहिब कुरान तरश عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے رات دن خرچ کرتا رہتا ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ دیکھیں ان دو چیزوں پر رشک جائز ہے۔ حسد کا ورڈ، حسد یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو کسی نعمت میں دیکھے تو تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ جبکہ رشک کیا ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھے تو خوش ہو اور جو اس کو نعمت ملی ہے اس کے لیے اور اس کی برکت کی دعا کرو اور اپنے لیے اپنے رب سے اس کا فضل مانگ لے۔ پھر دیکھیے آنا دن یا رات میں سے کسی کوئی گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے فائدے کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عظیم الشان عطا ہے، جسے چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی یہ فضل عطا کر دے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم جیسی عظیم الشان نعمت کا حق شکر ادا کرنے کے لیے اسے دن اور رات میں تلاوت کیا جائے، اللہ کرے ہم ایسا کرنے والے بن جائیں۔ پھر یہ کہ کسی بھی نعمت کا حق واجب یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور کما حق کہوں اس پر عمل کیا جائے، جہاں اس کو استعمال کرے ساتھ ساتھ اس نعمت کا حق کیا ہے کہ اس پر عمل بھی کرے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ رات اور دن قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا انسان کو حریص رہنا چاہیے۔ ابھی بھی آپ کر رہے ہوں گے، رمضان کی راتیں ہیں نا، تو اللہ سے نیت کیجئے کہ ساری زندگی کا میرا یہی عمل ہو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی اور کرم فرمائے، اس سے اس کی وسیع جسے کہا جائے رحمت اور فضل کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرا فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی امامت وہ کرے جو قرآن مجید میں زیادہ جانتا ہو، اگر قرآن میں برابر ہو تو جو سنت زیادہ جانتا ہو، اگر سنت میں برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی، اور اگر ہجرت میں برابر ہو تو جو اسلام پہلے لایا، اور کسی کی مقرر جگہ میں جا کر اس کی امامت نہ کرے اور نہ اس کے گھر میں اس کی مستد پر بیٹھے مگر اس کے حکم سے۔ کتنی اہم حدیث ہے۔ تو یہاں پہ یہ اموں کا بڑارہ امامت کروائے، سلطان کسی کے زیر اثر بزیر ملکیت جگہ، تقریباً ہی کسی آدمی کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی خاص کرسی، چارپائی، بستر وغیرہ کے لیے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی جو فائدے ہیں، صاحب قرآن ہر حال میں دوسروں پر مقدم ہوتا ہے اور یہی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر یہ کہ حکمت و دانائی کی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر اہم کام کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا جائے، اور پھر تیسری اہم وہم اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اس کا متبادل پیش کرنا اصل نبوی منہج ہے۔
تو یہاں پہ جب کبھی انسان کو ڈاؤٹ ہو، اختلاف ہو، تو پھر اس کا آلٹرنیٹ بتا دیا کہ یہ آپشن ہے۔ تو کرنے کا کام کیا؟ اگر ہم بھی دوسروں پر مقدم ہونا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو اچھی طرح حفظ کریں اور پھر اللہ کے ذن سے الحمدللہ پڑھیں۔ پھر یہ کہ ہر اہم کام کو بیان کرتے وقت اس کو خوب اچھی طرح وضاحت کریں، ڈیٹیل بتائیں تاکہ سامنے والے کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ پھر اہم اور اختلافی معاملات کو تدریجاً ٹھیک کرنا چاہیے اور ان کے لیے بہترین آلٹرنیٹ بھی پیش کرنا چاہیے تاکہ صحیح سے لوگ اس آلٹرنیٹ کی طرف آئیں اور صحیح سے اس قرآن و سنت پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔